Good morning friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to continue or start our new chapter number 14, natural resource. Generally there are two types of the natural resource we study in the previous standard, which is renewable natural resource and non-renewable natural resource. Now we discuss about the biosphere. The biosphere is the life supporting zone of the earth with three subzones. बायोस्फीयर में कितने थ्री सबजोन्स हैं? कॉल्ड द लिथोस्फीयर, रॉक पार्ट, एटमॉस्फेयर, एयर पार्ट. एटमॉस्फेयर एयर का जो पार्ट्स है उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. लिथोस्फीयर जो रॉक पार्ट है अर्थ क्रस्ट में. हाइड्रोस्फीयर जो वाटर पार्ट है. ब्रीथ ऑफ एयर, the composition of the air. First of the percentage ratio of the air in our atmosphere or environment. What is this? Our environment have contain 78% nitrogen, 78% nitrogen, 21% surrounding oxygen, 0.03 surrounding carbon dioxide, and 0.90 surrounding argon gas, and other gases ratio is 0.17% in our atmosphere. You must have to remember that the composition of the air, there are 78% nitrogen present in our environment and 21% oxygen present in our environment. Carbon dioxide is 0.03, argon gases is 0.90, and other gases is 0.17. You must have to remember it. The interaction between the different component of the biosphere to maintain the balance between the biotic and abiotic component. जो बायोस्फीयर है वो क्या कर रहा है? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है. Makes the biochemical cycle. It is known as the biogeochemical cycle. बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या क्या है? वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, एंड ऑक्सीजन साइकिल है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द दीज फोर साइकिल: वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, एंड ऑक्सीजन साइकिल. Role of atmosphere in climate control. What is the role of atmosphere in the climate control? I explain you. Atmosphere act as protective blanket for the earth. Since atmosphere is bad conductor of heat, heat का क्या है? Bad conductor होगा. Then it keep the average temperature of the earth constant. At night, it slow downs the escape of heat into the outer space. It is the role of atmosphere in our climate control. Now we discuss about the movement of the air. The movement of the air. What is the movement of the air? The atmosphere gets heated from the radiation that is reflected back by the लैंड और वाटर बॉडीज़. तो जो रेडिएशन आती है, रेडिएशन कहाँ से आती है? सन से आती है. तो उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है. किससे करता है? लैंड बॉडीज़, लैंड एंड वाटर बॉडीज़ लाइक दैट पॉन्ड्स, सी, रिवर, इट्स एक्स्ट्रा. एज ऑन रिजल्ट ऑफ हीटिंग, कन्वेक्शन करेंट्स आर सेट इन द एयर सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. जो इसमें क्या है? जो रेडिएशन आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. किससे? लैंड बॉडीज़ और वाटर बॉडीज़ से. और वाटर तो क्या करेगा? हीट होगा तो कन्वेक्ट कर लेगा रेडिएशन को. बट जो लैंड है वो क्या होगा? फास्टर हीट होगी वाटर से. सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, द एयर over the gets heated faster than air above water bodies. Okay.
In coastal regions, during the day, the air above the land gets heated faster and starts rising, so the region of low pressure is created and air over sea moves into this sea of low pressure. This movement of air from one region to the other region is causes wind. How to produce wind? तो जनरली इसका क्या है? इट मेन फैक्टर इज द टेम्परेचर. मेन फैक्टर इज टेम्परेचर. Okay, so we have to see here in coastal regions. तो coastal regions में क्या है? During the day, the air above the land gets heated faster and starts rising. तो जो लैंड्स क्या हो जल्दी हीट हो रहा है फास्टर देन द वाटर इन द डे, सो द रीजन द लो प्रेशर इज क्रिएटेड. प्रेशर कैसा क्रिएट हो रहा है? लो हो रहा है. एंड एयर ओवर सी मूव्स इनटू द एरिया ऑफ लो प्रेशर, सो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द रीजन टू द अदर रीजन कॉजेस वाइंड. नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द डे. During the day, the direction of wind would be from the sea to the land. At night, both land and sea start to the cool. Since water cools down slower than the lands. लैंड क्या फास्टर कोल्ड हो रही है? इससे वाटर से. The air above water would be warmer than air above lands, thus the direction of wind would be from the land of the sea. Okay, तो डे में क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड वुड बी फ्रॉम द सी टू द लैंड. तो वाइंड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से? सी टू द लैंड. इसमें डे में. और नाइट में क्या है? बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू द कूल. नाइट में दोनों क्या कूल होना स्टार्ट कर देते हैं, लैंड एंड वाटर. बट सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, वाटर लैंड से स्लो कूल डाउन स्टार्ट होता है. ठीक है. द एयर एबव वाटर वुड बी वार्मर देन एयर. तो वाटर जो है एयर से ज़्यादा वार्मर होता है. एंड लैंड द डायरेक्शन ऑफ वाइंड वुड बी फ्रॉम द लैंड टू द सी. ओके. Now we discuss about the air pollution, which is called the air pollution. It is a undesirable change in physical, chemical or biological characteristic. It is an undesirable change in the physical, chemical or biological characteristic. It is caused due to an increase in the content of harmful substance, pollutant means such as oxides of nitrogen and sulfur. जो एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में. लाइक दैट द इंक्रीजमेंट हो रहा है हार्मफुल सब्सटेंस का और गैसेस का, लाइक दैट द नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स का. दे आर नोन एज द एयर पोल्यूशन. ओके. नाउ harmful effect of the air pollution. Which is the harmful effect of the air pollution? I hope you know better. First of all, it affects the respiratory system causing the breathing difficulties. तो एयर पोल्यूशन से क्या हो रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज आती है, जिसके लिए ब्रोंचिटिस, अस्थमा, लंग्स कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस जैसी डिसीज होती है. अस्थमा, लंग कैंसर एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीवी. ओके. नेक्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेस इज डेंजरस.
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक दैट कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम के बर्न होने से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? ऑक्साइड्स। दे आर वेरी डेंजरस फॉर इनहेल बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स CO इज ए मोस्ट पॉइजनस गैस। अगर ये ब्रीथिंग में आ रही है तो पर्सन कैन बी डेथ, person can be death. Now combustion of the fossil fuels also increase the amount of suspended particles in air. The presence of high level of these pollutants reduce the visibility in cold weather where water also condenses of air forming smoke. तो कॉम्बस्टन ऑफ फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होता है इंक्रीजिंग, इसका अमाउंट यूज ज़्यादा होता है तो इसमें क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स आते हैं जो डस्ट पार्टिकल, तो मोर पॉल्यूटेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फॉग हो जाता है, स्मोक हो जाता है इन द एनवायरनमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसिड रेन। Acid rain formed from the gas like sulfur dioxide, SO2, sulfur dioxide, nitrogen oxide present in polluted air. It causes the damage the living or non-living things. तो एसिड रेन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं रेन के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, जो तो एसिड रेन का जो pH होता है कितना होता है, लेस देन 5.5, लेस देन 5.5 अगर pH है रेन का, देन इट इज नोन एज द एसिडिक रेन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर साइकिल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर साइकिल। फर्स्ट ऑफ the process in which water evaporates and falls on the land as rain and later flows back into the sea via rivers is known as water cycle. I hope you understood. Means क्या है, the process in which the water evaporates, क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का, किसमें से हो रहा है, रिवर से, सी से, मीन्स सोर्स ऑफ द वाटर, सी है, रिवर है, पॉन्ड्स है, लेक है, उसमें क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन की वजह से क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, उसके क्या बन रहे हैं, मैक है, क्लाउड्स। उसके बाद क्या हो रहा है, फॉल डाउन एट द लैंड एज ए रेन, रेन पे लैंड पे एज ए रेन फॉल डाउन होता है। दिस फ्लो बैक इनटू द सी वाया द रिवर्स इज नोन एज ए वाटर साइकिल। द प्रोसेस इन विच वाटर evaporates and falls on the land as rain and later flows back into the sea. सी में वापस गया, सी से इवेपोरेट होके कहाँ गया, क्लाउड्स बने, क्लाउड से एज ए रेन वापस लैंड पे आया, लैंड पे रिवर थ्रू वापस सी में गया, मतलब जहाँ था वहीं पहुँच गया। मीन्स इट इज ए नॉन एज ए साइकिल। किसकी साइकिल है, वाटर साइकिल। वाटर फ्लोस थ्रू रॉकिंग कंटेनिंग सोल्यूबल मिनरल्स। अब वाटर के साथ फ्लो कौन हो रहे हैं, रॉकिंग कंटेनिंग सोल्यूबल मिनरल्स हो रहे हैं। सम ऑफ देम गेट डिसॉल्व इन द वाटर, तो सम तो क्या हो रहे हैं उसमें, डिसॉल्व हो रहे हैं, सम क्या हो रहे हैं उसमें, डिसॉल्व हो रहे हैं, कुछ डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, thus the river carry many nutrients from the land to sea and these are used by the marine organism। मरीन जो ऑर्गेनिज्म है क्या करते हैं, जो वाटर के साथ जो मिनरल्स आते हैं उसका यूज करते हैं। ओके, सो वी डिस्कस अबाउट when the water vapors condense and water droplets and grow big and heavy, they fell down in the form of rain. The range of from 5 cm to 200 cm of rainfall in a year in our country। हमारे जो कंट्री में जो वाटर फ्लोस होता है
रेनफॉल होता है वो 5 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर तक काउंट होता है। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉट बाय द साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून में ज़्यादा रेनफॉल होता है। डिप्रेशंस इन द वे ऑफ बंगाल में आल्सो कॉज रेन इन सम एरियाज। आल्सो कॉज इन some areas. Now we discuss about water is wonder liquid. How? Because all cellular process take place in water medium. जितनी भी सेलुलर प्रोसेस होती है मीडियम क्या है उसका वाटर। सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल फॉर्म, रिक्वायर्स फ्रेश वाटर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्ट्स, major resource to determine the life of the earth. The dissolve of the fertilizers, the dissolved fertilizers NPK means nitrogen, phosphorus and potassium. NPK, pesticides, DDT, sewage, disease causing organisms, waste form of factories, mercuries and water released from the dams can affect the life form on the earth. The dissolved oxygen is being used by animals and plants that live in water. जो वाटर लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं लाइक दैट प्लांट्स और एनिमल्स वो क्या होते हैं जो ऑक्सीजन वाटर में सोल्यूबल होती है उसको क्या करते हैं गेट करते हैं। सो देयर ब्रीथिंग इज फास्ट। वुड adversely affect the aquatic organisms. The change in temperature would be the dangerous for the eggs and larvae of the various animals, particularly susceptible to temperature change. It leads to the water pollution. Now today we have completed water cycle. In the next lecture we studied about the oxygen cycle, carbon cycle. Okay, it's extra. If anybody have any query regarding the water cycle and air pollution and it's regarding, then ask me on comment box. Have a nice day.